Okay, so class, shall we start? So in today's class, we will be discussing the about the slabs. We were discussing about yesterday. We have discussed about the code IS code provisions for slab. Today in today's class, I will be telling you about the one-way slab and the two-way slab. Right, there are two types of slabs that you can design. So one is called one-way slab and another one is two-way slab. So we'll design one of them today, and in fact, I'll tell you what are the differences. What are the difference between both these type of slabs, right? So to begin with today's lecture, we will first go through the difference between the one way and two-way slab. That way you will understand it better, right? So I'll just present my screen to you all. So is my screen visible to you all? Can you see this website from Civil Lead? Just any one of you can just reply. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I'll start with the difference between one-way and two-way slab, right? So as I told you earlier that there are two types of slabs. One is one-way and another one is two-way slab. So you can refer this Civil Lead site for this this content here. But design I'll tell you later on. First, let's see the difference between the slabs, right? So we'll start with first of all, what is slab, right? So in RC construction, the slab is an extensively used structure element forming floors and roofs. ठीक है, ये कल मैंने आपको बताया था. A concrete slab is a plain element having the depth d much smaller than span and width. ठीक है, जो डेप्थ होती है उसकी स्लैब की, इट इज मच स्मॉलर देन इट्स स्पैन और विथ से कम होती है. ठीक है, तो आपने स्लैब देखे हैं किस टाइप के रहते हैं, अभी डायग्राम में नीचे और अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा. ठीक है, एंड इट मे बी सपोर्टेड बाय रेनफोर्स कंक्रीट बीम. ठीक है, बीम्स में स्लैब सपोर्टेड होते हैं. ठीक है, बाय मेसनरी वॉल और डायरेक्टली बाय कॉलम समटाइम्स आल्सो. ठीक है, सो द डिफरेंस बिटवीन वन वे एंड टू वे स्लैब्स. सो फर्स्ट we'll be discussing is a one way slab. देखिए one way slab क्या होता है? One way slab, the slab which is supported only on two opposite sides by rigid supports carry the load by flexure in the direction perpendicular to the supports. ठीक है, one way slab वो slab होती है जिसमें आपका slab जो है दो साइड से, दो अपोजिट साइड से सपोर्टेड होता है. ठीक है, मैं इसको क्या डायग्राम से और क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को. सी दिस इज योर वन वे स्लैब. दिस इज योर वन वे स्लैब. ये आपका स्लैब है. ठीक है, इसमें क्या है, ये सपोर्टेड है सिर्फ दो साइड से, इधर वाली साइड से और इधर वाली साइड से. ठीक है, दो साइड से ये सपोर्टेड है. और इसमें क्या होगा, जब भी इसमें आपका लोड पड़ेगा तो इट विल बेंड लाइक दिस. ठीक है, तो ये सिलेंड्रिकल सरफेस की तरह बेंड करेगा. वन वे में सिर्फ दो तरफ, स्लैब की दो तरफ से आपका सपोर्ट होगा, इस तरफ से और इस तरफ से. ठीक है, और इसमें जो फोर्सेस हैं, जो उसकी डायरेक्शन है, लोड की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी टू द सपोर्ट. ये सपोर्ट है तो इसके परपेंडिकुलर लोड लगेगा. ठीक है, लोड की डायरेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर टू द सपोर्ट होगी. आई विल मेक इट मोर क्लियर. फिलहाल आप ये देखिए वन वे स्लैब में पहला डिफरेंस क्या है कि ये दो साइड से, सिर्फ दो साइड से सपोर्टेड रहेगा सपोर्ट्स में. ठीक है, so a plane surface of a predominantly uniform loaded slab deforms into a cylindrical surface. ये cylindrical surface की तरीके से bend करेगा, in which curvature and hence bending moment develops only in one direction. So the bending moment develops only in one direction. That is why these types of slabs are called one way slab. ठीक है, तो मेन डिफरेंस क्या है इसका कि बेंडिंग मोमेंट जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में डेवलप होंगे, उसको इसलिए हम बोलते हैं वन वे स्लैब. राइट, तो अभी बेटर आपको और होगा इससे क्लियर. अभी देखिए अब टू वे स्लैब में क्या होता है. ये वन वे स्लैब का डायग्राम था.
एंड दिस इज योर टू वे स्लैब. व्हाट इज टू वे स्लैब? टू वे स्लैब में क्या है, ये चारों के चारों एजेस में, 4 एजेस में सपोर्टेड होगा. उसमें सिर्फ 2 एजेस पे सपोर्ट था, ये देखिए इधर पे और इधर पे. बट ये वाला जो स्लैब है टू वे स्लैब किसे बोलेंगे? जो चारों एजेस पे सपोर्टेड हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे टू वे स्लैब, राइट. विच कैरी लोड बाई फ्लेक्शन इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन. उसमें आपका एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था, सपोर्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस लगते थे, ठीक है. इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो बेंडिंग है वो दोनों साइड से लगेगी, मतलब इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इस वाली सपोर्ट की भी तरफ से लगेगी और इस वाली सपोर्ट की तरफ से भी लगेगी. तो इसलिए इसको हम बोलते हैं टू वे स्लैब्स. बेसिकली इसमें जो मूवमेंट है वो बोथ साइड से जनरेट हो रहा है, बेंडिंग मूवमेंट, इसलिए हम इसे टू वे स्लैब बोलते हैं, ठीक है. सो डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस है. अब जो टेक्निकली जो हम लोग पता कैसे कर सकते हैं कि कोई भी स्लैब वन वे है कि टू वे, ये पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि वन वे जो होगा सिर्फ 2 साइड से सपोर्टेड होगा, ठीक है. दूसरा डिफरेंस ये है कि टू वे स्लैब जो है वो चारों साइड से सपोर्टेड होगा, ठीक है. एक और डिफरेंस होता है, उसको आप कैसे चेक करोगे, ठीक है. सो इफ लेंथ बाय विड्थ रेशियो, मतलब ये जो है लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन रेशियो, मतलब एक लॉन्गर स्पैन है एक शॉर्टर स्पैन. अभी मैं आपको डायग्राम से और दिखाऊंगा. इफ इट इज मोर देन टू, मोर देन और इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये वाली लाइन देखिएगा. इफ इट इज मोर देन और इक्वल्स टू 2 देन इट इज कंसिडर्ड एज अ वन वे स्लैब, ठीक है. वन वे स्लैब बोलेंगे जब लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन को मैं रखूंगा और वो 2 से ग्रेटर देन 2 और इक्वल्स टू 2 आएगा, इट विल बी कॉल्ड वन वे स्लैब. और उसी के अपोजिट अगर लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन, if it is coming less than 2 then it will be called a two way slab, ठीक है. इस डायग्राम से आप इजीली समझ सकते हैं. देखिए ये वन वे स्लैब है, दिस इज योर लॉन्गर स्पैन, Lx इज योर लॉन्गर स्पैन एंड Ly इज योर शॉर्टर स्पैन, ठीक है. ये Lx जो है ये बड़ा वाला डायमेंशन है और Ly छोटा वाला डायमेंशन है. तो लॉन्गर अपॉन शॉर्टर का जो रेशियो है, अगर ये 2 से ज्यादा आ जाता है तो ये क्या कहलाएगा? वन वे स्लैब कहलाएगा, ठीक है. और मैंने बताया था आपको जो लोड है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है, मतलब वो सपोर्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो इसको हम इसलिए बोलते हैं वन वे स्लैब. ये देखिए इसमें आपका जो है फोर्सेस किस तरीके से लग रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द सपोर्ट. यहाँ पर सपोर्ट होगा, इसके परपेंडिकुलर ये फोर्सेस लग रहे हैं, ये Lx डायरेक्शन में इसका सपोर्ट है, इसके परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं, दैट इज योर वन वे स्लैब. उसी तरीके से टू वे स्लैब क्या होगा, when Lx by Ly, मतलब जो लॉन्गर स्पैन है अपॉन शॉर्टर स्पैन, अगर वो लेस देन 2 आ गया, ठीक है, मान लो ये स्क्वायर टाइप की है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो 4/4 इज 1, तो इट इज लेस देन 2, राइट. सो इट विल बी कॉल्ड टू वे स्लैब. बहुत इजी डिफरेंस है, ठीक है. ये आपको समझ में आ गया होगा, 2 डिफरेंसेस मैंने आपको बताए, ठीक है. अभी आगे और क्लियर मैं करूंगा इसको. और ये देख लीजिए टू वे स्लैब में क्या है, द फोर्सेस लोड, जो लोड आपका ट्रांसफर हो रहा है वो क्या है, वो चारों डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है. अब इस लोड के वजह से क्या फर्क पड़ जाएगा, ये जो ट्रांसफर हो रहा है लोड, इसके वजह से क्या फर्क हो जाएगा, इसके वजह से रेनफोर्समेंट की प्लेसिंग में फर्क आएगा, ठीक है. जहां पर मूवमेंट जनरेट हो रहा होगा वहां पे हम लोगों को रेनफोर्समेंट, मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी. तो अब देखते हैं किस वाले केस में कहां पर कौन सी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है. बस आप ये ध्यान रखिए एज ऑफ नाउ दैट वन वे स्लैब जिसमें कि लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 2 है, और इस वाले में दैट रेशियो इज लेस देन 2, राइट, फॉर अ टू वे स्लैब. तो ये एक बड़ा डिफरेंस है. 2 डिफरेंस आपको पता चल गए, ठीक है. ये पर्टिकुलरली एक इसमें डिफरेंस बताया हुआ है, कंपेयर किया हुआ है इसको वन वे स्लैब को टू वे स्लैब से. इस पर मैं फिर आता हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि दिस वन, यस, डिटेलिंग वन वे स्लैब रेनफोर्समेंट डिटेल, ठीक है. जब वन वे स्लैब में कैसे सरिया डाली जाती है, तो वन वे क्या होता है, देखिए दिस इज योर 4, शॉर्टर स्पैन इज 4 एंड लॉन्गर स्पैन इज 10, ठीक है. तो आप बताइए ये दिस विल बी योर वन वे स्लैब और टू वे स्लैब? सर वन वे. कैसे होगा वन वे सर क्योंकि रेशियो ग्रेटर देन 2 आ रहा. बिकॉज द रेशियो इज लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन का रेशियो कितना आ रहा है, 10/4 is 2.5, that is more than 2, so it will definitely be a one way slab, ठीक है. तो वन वे स्लैब में अब क्या होता है, जो रेनफोर्समेंट्स है, देखो 2 टाइप की रेनफोर्समेंट होती है, एक मेन बार होती है, एक डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है, जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है, जैसे हम लोग बीम में कर रहे थे.
तो मेन बार जो होती है इसमें वो किसके अलोंग लगती हैं, अलोंग द शॉर्टर स्पैन। ये देखिए छोटा स्पैन है ना 4 मीटर वाला, इसके इसके पैरेलल मतलब आप लगाओगे, या फिर ये कह सकते हो कि जो लॉन्गर स्पैन है उसके परपेंडिकुलर लगाओगे। इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पर ऊपर कि जो फोर्सेज हैं वो शॉर्टर स्पैन के परपेंडिकुलर जनरेट हो रहे हैं इसमें, ठीक है, जो लोड लग रहा है। तो हम लोग मेन बार कहाँ पर लगाएंगे, उसी डायरेक्शन में लगाएंगे, ठीक है। और ये थोड़ा सा इस तरीके का आपको डिजाइन दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं क्रैंक्ड बार, ठीक है। ये थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, यहाँ देखिए बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल रियल लाइफ आपको डायग्राम दिख रहा है। तो ये लॉन्गर स्पैन है, मान लीजिए बड़ा वाला स्पैन है ये, और ये छोटा स्पैन है, ठीक है। ये मान लीजिए 10 मीटर का है और ये 4 मीटर का है। तो मैंने क्या बताया, जो आपकी मेन रेनफोर्समेंट होगी, जो बड़े डाया वाली रेनफोर्समेंट होगी, वो कैसे प्रोवाइड की जाएगी, शॉर्टर स्पैन के पैरेलल। तो ये शॉर्टर स्पैन है, उसके पैरेलल देखिए ये क्रैंक्ड है, मतलब यहाँ से बेंट अप टाइप का भी है, मतलब जिसको उठा के रखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से नीचे। ये क्यों उठाया है ये भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सपोर्ट्स में नेगेटिव मूवमेंट जनरेट होता है और बीच में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो उससे भी वो डायग्राम्स और क्लियर होगा जब हम डिजाइन करेंगे, देन यू विल कम टू नो। तो ये देखिए, ये शॉर्टर स्पैन के परपेंडिकुलर हमने मेन रेनफोर्समेंट लगा रखी है, ये देखिए ये, ठीक है, इस तरीके से ये बहुत क्लियरली दिख रहा है इसमें। और उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बार जो होगा वो क्या होगा, वो हम लोगों को मिनिमम प्रोवाइड करना पड़ेगा इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द लोडिंग बोल सकते हैं, या फिर जो इसके जो अपोजिट डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाएंगे। सो दीज आर योर डिस्ट्रीब्यूशन बार, देखिए स्ट्रेट लगी है 1 2 3, यहाँ से यहाँ तक ये सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। तो ये आपका है वन वे स्लैब। तो इस डायग्राम से काफी क्लियर हो रहा है कि वन वे स्लैब आपको किस तरीके का दिखेगा, ठीक है। उसी तरीके से see from the drawing it is clear that it is greater than 2 hands, it is a one way slab, ठीक है। So the main bar or cranked bars are provided in shorter span and distribution are provided in longer span. तो हमेशा shorter span के हम लोग along the shorter span हम लोग main reinforcement bar provide करेंगे, और ये इसके लॉन्गर स्पैन के अलॉन्ग प्रोवाइड करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब देखिए टू वे बार में, टू वे स्लैब में क्या डिफरेंस आता है। सी फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग दिस स्लैब, तो इसका 6 मीटर का है और ये भी 6 मीटर का है, ठीक है। इसमें लॉन्गर शॉर्टर स्पैन कुछ नहीं है, ये रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ स्लैब है। तो आप इनका कोई किसी को भी लॉन्गर किसी को भी शॉर्टर मान लीजिए, बिकॉज शॉर्टर तो हो ही नहीं सकता, इक्वली है दोनों। सो दिस विल बी अ लेंथ अपॉन विड्थ, आप करके देखिएगा 6/6 विल बी 1, सो इट इज लेस देन 2। तो आपको इस रेशियो से पता चल जाएगा कि इट इज डेफिनेटली अ टू वे स्लैब, राइट। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि ये टू वे स्लैब है। अब टू वे स्लैब है तो इसमें क्या होगा, जो मेन बार्स होंगी वो किसके अलोंग, अब देखिए इसमें दोनों साइड से बेंडिंग मूवमेंट डेवलप हो रहा है, राइट। मैंने बताया था दोनों साइड से, इस तरीके से भी हो रहा है और इस तरफ को भी हो रहा है। तो इसमें आपको दोनों साइड पे मेन बार्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस वाले स्पैन में भी मेन बार प्रोवाइड की है, और इस मतलब लॉन्गर साइड के अलोंग भी आपने मेन बार प्रोवाइड किया, और शॉर्टर साइड के अलोंग भी मेन बार प्रोवाइड किया, ये देखो लिखा भी है। That is why main bars or crank bars are provided at longer span as well as shorter span also. तो दोनों जगह पे मेन बार इसमें लगाई हुई है, ठीक है। उस वाले में हम लोगों ने सिर्फ शॉर्टर स्पैन की तरफ मेन बार लगाई थी और लॉन्गर स्पैन की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाई। ये देख लो इसमें डायग्राम में क्लियर है। तो इस तरीके का मान लीजिए ये लॉन्गर है, ये शॉर्टर स्पैन है, तो दोनों तरफ आपको क्रैंक्ड बार्स या फिर मेन बार्स लगानी है। इस तरफ भी आप देखेंगे ये लगी हुई है, और इस डायरेक्शन में भी देखिए यहाँ से बैठी हुई है, फिर ये आगे गई फिर उठ गई ऊपर जाके, ठीक है। तो मेन रेनफोर्समेंट इसमें दोनों साइड से लगी है, इसलिए इसको टू वे स्लैब भी बोला जाता है। सो दीज वर द बेसिक डिफरेंसेस, और ये हमने डायग्राम और इक्वेशन की हेल्प से देख लिया, बट वट एवर द डिफरेंसेस आर मेंशन्ड हियर, वो भी हम लोग देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या इन्होंने मेंशन किया। अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, आई विल गो थ्रू इट वेरी फास्ट, ठीक है। सो द रेशियो इज L/B रेशियो इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, देन इट इज कंसिडर्ड एज वन वे स्लैब, ये हम देख चुके हैं। और अगर लेंथ अपॉन विड्थ का रेशियो इज लेस देन 2, देन इट विल बी कॉल्ड अ टू वे स्लैब, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस आप लोगों को क्लियर है। सेकंड डिफरेंस क्या है, in one way slab the main reinforcement is provided in a short span and distribution reinforcement is provided in the longer span. तो shorter span में हम लोग क्या देते हैं, main reinforcement, और longer span में हम देते हैं distribution bars, ठीक है। और two way slab में क्या होता है, main reinforcement दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड की जाती है, shorter span में भी और longer span में भी। ये भी आपको क्लियर था, जस्ट वी हैव सीन इट। थर्ड में आते हैं, in one way slab the crank is provided in two directions,
ठीक है, ये आपने देखा था 2 डायरेक्शंस, मतलब कि ऊपर और नीचे की तरफ ऐसे प्रोवाइड की जाएगी। और 2 वे स्लैब में क्रैंक जो प्रोवाइड किया जाता है, जो क्रैंक मतलब जो वो उठा वाला पोर्शन था जो थोड़ा सा बेंट हुआ था, ठीक है, वहां पर इज प्रोवाइडेड इन 4 डायरेक्शंस, ये चारों डायरेक्शन होगा। तो ये भी डिटेलिंग से रिलेटेड डिफरेंस है। फोर्थ देखिए, वन वे स्लैब इज सपोर्टेड बाय बीम ऑन टू अपोजिट साइड्स ओनली। तो वन वे स्लैब के लिए ये कंडीशन है कि वो सिर्फ 2 अपोजिट साइड से सपोर्टेड होगा, और 2 वे स्लैब के लिए कंपलसरी है कि वो चारों साइड से सपोर्टेड होगा। ठीक है, ये डिफरेंस भी हमने देख लिया था। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन, इन वन वे स्लैब द लोड इज कैरिड इन वन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सपोर्टिंग बीम। तो लोड जो लग रहा है इसमें वो परपेंडिकुलर लग रहा है सपोर्टिंग बीम के, वो भी हमने देख चुके हैं। 2 वे स्लैब में क्या होता है, लोड दोनों डायरेक्शन में लग रहा होता है, चाहे वो लॉन्गर स्पैन हो शॉर्टर स्पैन हो। ये डिफरेंस भी क्लियर है। द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ वन वे स्लैब इज सिलेंड्रिकल। ये सिलेंड्रिकल टाइप का फॉर्म होता है, और ये किस टाइप का फॉर्म होता है, आपने अभी देखा था ऊपर यहाँ पे, ये देखिए, ये सिलेंड्रिकल शेप में बेंट होता है, और ये एक कह लीजिए स्फेरिकल प्लेट की तरह फॉर्म हो रहा है। ठीक है, डिश जैसे हम बोल सकते हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ, the deflected shape of one way slab is cylindrical, whereas the deflected shape of two way slab is dish or saucer like shape। ठीक है, ये प्लेट की तरह शेप है इसका। इसके अगर आप एग्जांपल देखें तो छज्जा और वरांडा जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वन वे स्लैब की तरह डिजाइन किया जाता है। ठीक है, जो आपके घरों में वरांडे रहते हैं, आगे की तरफ छज्जे निकले हुए होते हैं, तो वो बेसिकली वन वे स्लैब की तरह डिजाइन किए जाते हैं। और जो आपकी जो बेसिकली आपका फ्लोर होता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में वगैरह में, जो फ्लोर्स होते हैं वो 2 वे स्लैब होते हैं। ठीक है, जनरली मतलब हम लोग 2 वे स्लैब्स को ही डिजाइन करते हैं वहां पे। वाइल डिजाइनिंग वन वे स्लैब वी प्रोवाइड लेस स्टील। ठीक है, वन वे स्लैब में लेस स्टील प्रोवाइड करना है, क्योंकि मेन रेनफोर्समेंट एक ही डायरेक्शन में लगनी है। हेंस द डेप्थ ऑफ द स्लैब इंक्रीजेस। तो ऑफकोर्स हमें डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी, तभी उतनी स्ट्रेंथ है। या तो देखो कंक्रीट बढ़ाना पड़ता है, या फिर सरिया बढ़ानी पड़ती है। अगर सरिया कम है तो हमें कंक्रीट बढ़ाना पड़ेगा, उसकी वजह से इसकी डेप्थ बढ़ जाएगी। तो जो वन वे स्लैब है वो उसका जो थिकनेस है, चौड़ाई है, वो किससे ज्यादा हो गया, 2 वे स्लैब से ज्यादा चौड़े दिखेंगे आपको। ठीक है, और उसी तरीके से अगर 2 वे स्लैब डिजाइन करेंगे, इसमें ज्यादा रेनफोर्समेंट है, क्योंकि इसमें दोनों डायरेक्शन में सरिया लग रहा है, मेन रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सरिया ज्यादा लग रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोड क्या है, सरिया ले रहा है, तो आपको थोड़ा सा कम थिकनेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कंक्रीट कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी रेनफोर्समेंट इसका काफी इसकी स्ट्रेंथ ले लेता है। तो ये कंपेयर टू वन वे स्लैब इट इज, इसकी थिकनेस कम होती है। ठीक है, तो आपको 2 वे स्लैब जो दिखेंगे वो थोड़े पतले दिखेंगे रादर देन वन वे स्लैब। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस इज वन वे स्लैब इज इकोनॉमिकल अप टू अ स्पैन ऑफ 3.6 मीटर। मतलब 3.6 मीटर्स तक का अगर स्पैन है तो आप वन वे स्लैब को कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर वो बड़े सेक्शन है, जैसे पैनल है 6 मीटर बाई 6 मीटर के बड़े से स्लैब लग रहे हैं, तो जनरली हम लोग 2 वे स्लैब को डिजाइन करते हैं। ठीक है, ये भी एक डिफरेंस है। वन वे स्लैब क्वांटिटी ऑफ स्टील इज लेस, ये तो डिस्कस कर लिया था। इन वे 2 वे स्लैब स्टील इज मोर, ये तो ठीक है, ये देख लिया हमने। वन वे स्लैब बेंडिंग इज ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, मैंने बता दिया ऊपर, बेंडिंग आपकी एक डायरेक्शन में होती है, इसलिए ही इसको वन वे स्लैब बुलाया जाता है, इन शॉर्टर स्पैन डायरेक्शन। ठीक है, और इसमें 2 वे स्लैब में क्या होता है, बेंडिंग इज इन बोथ डायरेक्शंस, तो उसको हम बोलते हैं 2 वे स्लैब। हाँ जी, बताइए सर। जो आखिरी वाला पॉइंट है इसको थोड़ा डायग्राम बना के थोड़ा समझा। डायग्राम में ऊपर देख लीजिए, ये जो है द बेंडिंग इज ओनली इन वन डायरेक्शन इन शॉर्टर स्पैन, दैट इज इन शॉर्टर स्पैन। अब देखिए आप लोड के डायग्राम से देखिएगा। ठीक है, ये आपका शॉर्टर स्पैन है एल वाई, ये आपका लॉन्गर स्पैन है एल एक्स। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जो शॉर्टर स्पैन होगा उसके परपेंडिकुलर ये जो लोड होगा, ठीक है, वो लोड किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, देखिए अलोंग दिस इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कैसा है, ये शॉर्टर स्पैन है, ठीक है, और ये लॉन्गर स्पैन है, इसके परपेंडिकुलर ही एक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर दिख रहा है। तो फोर्स जो है दो ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है, देखिए। ठीक है, और जो ये है शॉर्टर स्पैन है, इसके पैरेलल है, और लॉन्गर स्पैन के परपेंडिकुलर है। देखिए डायग्राम से दिख रहा है आपको परपेंडिकुलर। तो हम लोगों को बेसिकली जब भी हम वन वे स्लैब डिजाइन करेंगे ना, तो हम लोग एक बार ध्यान रखेंगे कि हमारा जो ये एल वाई है, जो शॉर्टर स्पैन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये प्रिडोमिनेंट होगा, क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट भी, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट निकालो, तो आप कैसे निकालते हो मूवमेंट? मूवमेंट इज नथिंग बट फोर्स इनटू द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप कैसे निकालोगे, जितना भी फोर्स लग रहा होगा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसलिए हम लोग इसमें शॉर्टर स्पैन में ही इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, वन वे स्लैब में। बट जैसे हम टू वे स्लैब में आते हैं, इसमें देखिए लोड क्या है, चारों डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है।
इधर भी हो रहा है और इस Yes, sir. तरफ भी हो रहा है ना। तो इसमें बेंडिंग मूवमेंट Yes, जो है sir. वो, अगर आपको मैं मूवमेंट निकालने के लिए बोलूँ इस वाले में, तो आपको यार क्या निकालना पड़ेगा, अलोंग दिस LX ऑल्सो और LY के Okay. अबाउट भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप देखिए ये Yes, फोर्स sir. लग रहा है, अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर आप निकालिए मूवमेंट, तो आपका फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस हो जाएगा, This उसी तरीके से LX distance. में फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस हो जाएगा। सो टू वे स्लैब में आपको बेंडिंग मूवमेंट दो डायरेक्शंस में, इसलिए इसको टू वे स्लैब बोल रहे हैं, और इसमें ओनली इन वन डायरेक्शन है, तो इसलिए इसको वन वे स्लैब बोलते हैं, ठीक है। Okay, thank you, sir. ठीक सर है, एक क्वेश्चन और. अभी एक इस पे हम लोग एक न्यूमेरिक, ठीक है मैं बताता हूँ आपको एक न्यूमेरिकल, और अभी हम जस्ट करेंगे इस पर पूरा का पूरा, मैं आपको डिजाइन करके एक वन वे स्लैब डिजाइन करके दिखाऊंगा। टू वे स्लैब कल कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज वाली क्लास में मैं आपको वन वे स्लैब करके दिखाऊंगा, जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होगा, ठीक है। जैसे हम लोग हॉल वगैरह बनाते हैं उसमें कैसा स्लैब डलता है, ठीक है, और क्या क्या चीजें हमें कंसिडर करनी पड़ेंगी, तो वो ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से रेनफोर्समेंट लग रही है और कौन से मैंने क्यों लिया हुआ है। अभी मैं सिर्फ आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, तो मे बी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, बट व्हेन आई गो टू माय नोट्स और हम लोग एक डिजाइन करके देखेंगे, इट विल बी मोर क्लियर, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, किसी को और डाउट था कुछ, हाँ पूछना चाहते थे। सर जैसे हम रेशियो ले रहे हैं ना, लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर, हाँ हाँ, तो ऐसा क्यों ले रहे हैं? मतलब शॉर्टर ऊपर लॉन्गर भी तो ले सकते थे. देखिए ये तो आईएस कोड की रिक्वायरमेंट है ना, मतलब हम लोगों ने डिफाइन उस तरीके से किया हुआ है वन वे स्लैब, ठीक है। तो Yes, ये तो मतलब उस रेशियो को ही बोला जाता, उस रेशियो से ही चेक किया जाता है कि ये वन वे स्लैब है कि नहीं है, ठीक है। शॉर्टर टू लॉन्गर टू लॉन्गर लॉन्गर अपॉन टू शॉर्ट. शॉर्टर, है ना। ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी आईएस कोड की रिकमेंडेशन। आईएस कोड क्या मतलब, अगर आप, ये तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, अगर आप बाहर के कोड भी देखेंगे तो कहीं कई कोड्स में जो है अमेरिकन कोड होता है, ठीक है, उस तरीके से उसमें अगर आप देखेंगे तो भी उनके डिजाइन में वन वे स्लैब और टू वे स्लैब इसी तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। So this is just to check whether it is a one way slab or two way slab. This ratio has been given, ठीक है। अब ये क्यों लिया या कैसे लिया, ये तो मतलब एक जिन्होंने फॉर्म किया होगा कोड वगैरह, ठीक है, उन्होंने कई सारी चीजें प्रैक्टिकली फील्ड में देखी होंगी, उसके बाद ये सारी चीजें कंसिडर की गई होंगी, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ा फिर वैसा टॉपिक हो जाएगा, है ना, डिटेल्ड टॉपिक हो जाएगा। सो आई होप कि ये थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। नाउ आई मैं इनफैक्ट ये करूंगा कि आई जस्ट शेयर द लिंक ऑफ दिस साइट टू यू, ठीक है। अगर किसी को दोबारा से रिव्यू करना होगा तो वो सारे डिफरेंसेस वगैरह देख लेगा, ठीक है। तो आफ्टर दिस क्लास मैं गूगल क्लासरूम में ये साइट को मैं आपको एज अ रेफरेंस मैं आपको इसको शेयर करूंगा, ठीक है। सो नाउ आई जस्ट कम बैक टू माय माय नोट्स, और वहां से हम लोग देखते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Okay, so can you see this one whiteboard? Whiteboard दिख रहा है आप लोगों को? यस सर. क्लियर है, ये दिख पा रहा है ना? ठीक है। अब देखिए वही चीजें हैं, अब मैं इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें, क्योंकि मैं ऑलरेडी वहां पे आपको बता चुका हूँ, बट ये जो है मेरे नोट्स के थ्रू हैं, ठीक है। तो डिजाइन ऑफ अ वन वे स्लैब, हियर यू कैन सी वन वे स्लैब में क्या है, मैंने बोला अ स्लैब इज सेड टू बी वन वे इफ, पहली कंडीशन क्या थी, इफ द स्लैब इज सपोर्टेड ओनली ऑन टू अपोजिट साइड्स। पहली कंडीशन तो ये है, इफ इट इज सपोर्टेड ऑन टू अपोजिट साइड्स and the slab is supported on, or if the slab is supported on all four sides, it is called two way slab, ठीक है। अगर ये स्लैब जो है, एक मिनट जो मैं इसको थोड़ा मूव कर रहा है, हाँ अब ठीक है। देखिए वन वे स्लैब कब कहलाएगा, द स्लैब इज सपोर्टेड ओनली ऑन टू अपोजिट साइड्स। ये दो अपोजिट साइड हैं, इनमें अगर ये सपोर्टेड है तो ये एक तो वन वे स्लैब कहलाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर स्लैब सपोर्टेड है चारों साइड पे भी, ठीक है, और उसका स्पैन रेशियो इज ग्रेटर देन टू, मतलब लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन, Ly by Lx इज ग्रेटर देन टू, देन इट विल बी कॉल्ड अ वन वे स्लैब, ठीक है। और टू वे स्लैब के लिए क्या था, अभी हमने देखा था, इफ Ly by Lx इज लेस देन टू, इट विल बी अ टू वे स्लैब, ठीक है। तो टू वे स्लैब हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले वन वे स्लैब को हम लोग देख लेते हैं आज। तो जैसे कि मैंने बताया, वन वे स्लैब क्या होगा आपका, लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन, ठीक है, उसका रेशियो क्या होगा, इट विल बी मोर देन टू, देन इट विल बी कॉल्ड योर वन वे स्लैब, ठीक है। तो आज हम वन वे स्लैब डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में टू वे स्लैब हम लोग डिजाइन करके देखेंगे। सो हियर Ly इज योर लॉन्गर स्पैन एंड Lx इज योर शॉर्टर स्पैन, ठीक है।
छोटा स्पैन कौन सा है, LX है, ठीक है। तो जब भी हम स्लैब को डिजाइन करेंगे ना, तो वो पूरा स्लैब नहीं डिजाइन करते हम लोग, हम क्या करते हैं, एक एरिया ले लेते हैं, ठीक है, या एक विड्थ मान लीजिए, हम एक पर्टिकुलरली 1 मीटर के लिए हम लोग इसको डिजाइन करके ये मान के चलते हैं। तो हम लोग कई बार आप देखोगे, मैं आपको विड्थ जो लूंगा वो 1 मीटर या फिर 1000 mm लूंगा, ठीक, वहां पर मैं आपको बताऊंगा डिजाइन करते हैं। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एक स्लैब का एक पोर्शन लेके उसको डिजाइन करते हैं, तो वो बाकियों में अप्लाई करेगा, ठीक है। अब कैसे होता है ये देखिए, इन दिस केस स्लैब इज डिजाइन फॉर शॉर्टर स्पैन ऑन, ये मैंने आपको बताया, जो शॉर्टर स्पैन होगा उसी के लिए हम लोग डिजाइन करेंगे, मतलब शॉर्टर स्पैन के अबाउट ही हम लोग मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे इन वन वे स्लैब, ठीक है। इन लॉन्गर स्पैन डायरेक्शन ओनली डिस्ट्रीब्यूशन बार और मिनिमम स्टील रिक्वायर्ड इज प्रोवाइडेड, और जो लॉन्गर स्पैन है ये वाला, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करेंगे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, तो हमने जैसे मैं अभी बताया था, इस वाले में आपकी मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, शॉर्टर डायरेक्शन में, और लॉन्गर डायरेक्शन में आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स प्रोवाइड की जाएंगी इस तरीके से, ठीक है, मेन बार्स इसमें रहेंगे। सो ये ज्यादा मेसी हो गया है, हटा ही देता हूँ इसमें, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया हो आपको। आगे बढ़ते हैं, सी नाउ व्हाट विल बी द प्रोसीजर टू डिजाइन, ठीक है। अब अगर वन वे स्लैब की मैं बात कर रहा हूँ, वन वे स्लैब हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, सो फॉर दिस इज फॉर okay, this is for one way slab, okay, so for one way slab आपको क्या देखना है, डिजाइन स्टेप्स क्या रहेंगे। सबसे पहले तो आपको लोड कंसीडर करना है कि कितना होगा। तो देखिए मैं कितना निकाल रहा हूँ, लोड ओवर 1 मीटर बाई 1 मीटर ऑफ अ स्लैब इज कैलकुलेटेड, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा का पूरा स्लैब नहीं ले रहा हूँ, मैं कितना ले रहा हूँ, सिर्फ 1 बाई 1 मीटर का सेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे अगर डेड लोड निकालना है, तो ऑफकोर्स जो भी उसकी थिकनेस है इंटू वन, मतलब 1 इसकी विड्थ हो गई, क्योंकि मैं 1 इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज मैं कितने सेक्शन के लिए निकाल रहा हूँ, 1 बाई 1 मीटर के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो 1 बाई 1 मीटर के लिए मैं निकाल रहा हूँ, 25 आपको पता है यूनिट वेट ऑफ द कॉन्क्रीट, तो ऐसे डेड लोड निकलेगा। उसी तरीके से लाइव लोड आपको गिवन होगा, वो भी आप निकाल लोगे, इसमें 1 बाई 1 सेक्शन में निकालोगे तो WL, तो इसकी जो भी यूनिट आएगी आप देखोगे पर मीटर स्क्वायर में आएगी, क्योंकि मैंने मीटर इंटू मीटर से निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अभी आगे चल के देखते हैं। और जो फ्लोर फिनिश होगा, फ्लोर फिनिश मतलब कि जो भी फ्लोर में जो भी फिनिशिंग लगी होगी, जैसे मार्बल लग रहा है या कुछ भी और चीज लग रहा है, उसका जो वेट आएगा वो फ्लोर फिनिशिंग में आएगा। तो ये 24 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 24 से इसलिए कर रहा हूँ, ये है जो डेड लोड में आपका कंसिडर है, ये हो रहा है कंक्रीट, RCC कंक्रीट, और ये हो रहा है प्लेन कंक्रीट। फिनिशिंग के लिए हम लोग प्लेन कंक्रीट लगाते हैं, ठीक है, मतलब कि फिनिशिंग मतलब कि जैसे प्लास्टरिंग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग प्लेन कंक्रीट बिछाते हैं, तो उसका 24 होता है यूनिट वेट, और जो विद रेनफोर्समेंट होता है RCC वो होता है 25, इसलिए यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 24 है, ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इन सबको आप ऐड कर दोगे तो टोटल लोड मिल जाएगा हमें W। तो इस तरीके से आप पहले लोड फाइंड आउट करोगे, ठीक है। लोड जैसे आपने फाइंड आउट किया, नेक्स्ट व्हाट यू विल डू, यू विल फाइंड द बेंडिंग मोमेंट दैट इज बीइंग डेवलप्ड। तो मैंने बताया था बेंडिंग मोमेंट आप कहाँ पर निकालोगे, दिस इज अ वन वे स्लैब, सो शॉर्टर स्पैन विल बी द प्रिडोमिनेंट वन। तो शॉर्टर स्पैन मान लो LX है, तो ये वाले इस वाली लेंथ के अलोंग आप बेंडिंग मोमेंट निकालोगे, ठीक है। तो कोई भी W लोड जो अभी आपको ऊपर कैलकुलेट किया आपने ऊपर यहाँ पे, वो W लोड है। बेंडिंग मोमेंट WL स्क्वायर बाई 8 आपको पता है, सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होता है W स्क्वायर बाई 8 होता है, ठीक है। अगर आपको डेप्थ निकालनी है, डेप्थ आप कैसे निकाल सकते हो, बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू QBD स्क्वायर, याद है, या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल्स टू QBD स्क्वायर। तो उस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो, आपको याद होगा, so, मैंने आपको लिखा था बेंडिंग मोमेंट और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो हम निकाल लेते हैं मैक्सिमम इज इक्वल्स टू QBD स्क्वायर। सो मुझे D निकालना, तो D विल बी लाइक, ये इधर आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, बिकॉज ये D स्क्वायर है, बेंडिंग मोमेंट अपॉन QB, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप डेप्थ निकाल सकते हो। B को देखिए मैं 1000 mm ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं विड्थ कंसीडर कर रहा हूँ 1 मीटर बाई 1 मीटर क्या सेक्शन में ले रहा हूँ, जिसमें की विड्थ मेरी कितनी है, 1 मीटर है। सो 1 मीटर इज लाइक 1000 mm, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, मैं हमेशा विड्थ को मैं कितना कंसीडर करके चल रहा हूँ, 1000 फॉर अ स्लैब। और 1000 क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज ये 1 मीटर के लिए कंसीडर करके चल रहा हूँ, पर मीटर के लिए कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, विड्थ 1000 क्यों आ रही है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको 1 बाई 1 मीटर के लिए ही डिजाइन करते हैं, इसलिए 1000 ले रखा है।
नेक्स्ट आप देखिए एरिया ऑफ स्टील, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, बेंडिंग मोमेंट अपॉन सिग्मा st इनटू जेडी। ठीक है, ये अगर आप WSM से कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, अगर आप LSM मेथड से कर रहे हैं तो अल्टीमेट मूवमेंट अपॉन सिग्मा st की जगह आ जाता है 0.87 fy इनटू लीवर आर्म डिस्टेंस दैट इज जेडी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है एरिया ऑफ स्टील निकालेगा। या दूसरा फॉर्मूला जो मैंने आपको एक बार पहले बताया था, ये वाला फॉर्मूला इफ यू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये बट ये सिर्फ अंडर, तो ये फॉर्मूला भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। इस फॉर्मूले से भी आपका डायरेक्ट एरिया ऑफ स्टील निकल आएगा। बट वन थिंग यू विल हैव टू इंश्योर इज दैट द सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स और लिमिटिंग सेक्शन ओनली, तभी ये काम में आएगा। ठीक है, तो इससे डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, इजी है। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, चेक फॉर शेयर। शेयर जो हमने इससे पहली वाली यूनिट में निकालता शेयर। चेक फॉर बॉन्ड टाउ BD। ठीक है, शेयर क्या होता है, टाउ V वाज योर शेयर। बॉन्ड क्या होता है, टाउ BD। ठीक है, बॉन्ड निकाला था। एंड चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ LD। ठीक है, LD का फॉर्मूला भी हम लोगों ने निकाला था। तो इन सारी चीजों के ये 7 स्टेप हैं, ये आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। दैट वे यू विल बी एबल टू डिजाइन योर वन वे स्लैब। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एक अब डिजाइन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये IES 1984 में भी ये एग्जाम ये आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैंने उठाया हुआ है, आप देखिएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। थोड़ा सा इसका जो डिजाइन है, इसमें सारे के सारे स्टेप्स हैं जो भी वन वे स्लैब को डिजाइन करने के लिए होते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए, मैं ज्यादा बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, सो अ हॉल, इसका डायमेंशन गिवन है 10 मीटर इंटू 40 मीटर। ठीक है, एक हॉल है जिसका 10 बाई 40 मीटर का इसका डायमेंशन है। इज कवर्ड बाई RCC स्लैब, इसमें स्लैब लगा हुआ है, सपोर्टेड ओवर T बीम्स। ठीक है, T बीम्स मतलब कि T शेप की बीम्स के ऊपर सपोर्ट किया गया। ऑफ कोर्स जो स्लैब है वो बीम के ऊपर ही सपोर्ट किया गया होगा। स्पेस्ड एट 4 मीटर इंटरवल, जो बीम है वो 4-4 मीटर के इंटरवल पे है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको और नीचे डायग्राम भी दिखा देता हूँ, आपको क्लियर भी होता रहेगा। ये देखिए, तो जो आपका ये देखिए जो आपका क्या बोलते हैं हॉल है, वो 10 बाई 40 का है, मान लीजिए। ठीक है, 10 बाई 40 का, ये 10 है और ये 40 का है। ठीक है, RCC स्लैब है, सपोर्टेड ऑन T बीम्स, ये बीम लगी हुई है बीच में। ठीक है, ये बीम्स लगी हुई है, इसके ऊपर स्लैब सपोर्ट किया गया है। ये बीम है आपकी जो 3 दिख रही हैं, और आगे भी हो सकती है। स्पेस एट 4 मीटर इंटरवल, और इनका डिस्टेंस कितना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, मतलब इस बीम के बीच से इस बीम के बीच तक का डिस्टेंस जो है वो है 4 मीटर का। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है। अब देखिए फ्लोर फिनिशिंग इसने ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में। फ्लोर फिनिशिंग मतलब कि कितना kg पर मीटर स्क्वायर। देखिए इसकी यूनिट भी मीटर स्क्वायर में है, मतलब ये क्या ले रहा है 1 बाई 1, मतलब एरिया ये 1 मीटर बाई 1 मीटर का ही कंसिडर करके चला। अब यूनिट देखिएगा मीटर स्क्वायर में आएंगी इसकी। ठीक है, नाउ लाइव लोड आप देखिए 200 kg पर मीटर स्क्वायर। अब ये यहाँ पर kg में दिया हुआ, आप इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी को पता है इसको न्यूटन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इस यूनिट को, ये लाइव, क्योंकि हम लोगों को लोड बेसिकली न्यूटन में देखने की आदत है, राइट। न्यूटन पर mm स्क्वायर, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो kg में दे रखा है, न्यूटन में चेंज कर सकते हो kg को, कोई बता सकता है kg को न्यूटन में कैसे चेंज कर सकते हैं। kg इज वेट, वेट को आपको उस न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है, कैसे करते हैं आप कन्वर्ट। नो आइडिया। 9.81 से मल्टीप्लाई सर। एग्जैक्टली 9.81 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फॉर सिंपल कैलकुलेशन यू कैन ऑल्सो टेक इट एज 10। ठीक है, 10 भी ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वैल्यू को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इट विल बी लाइक 2000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो आपको किलो न्यूटन में करना है तो फर्दर 1000 से डिवाइड कर दो तो 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो दैट इज सिंपल कन्वर्जन। ठीक है, बट यूनिट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, और क्या गिवन है, M15 का आपका कंक्रीट यूज होना है, माइल्ड स्टील यूज होना है, मतलब Fe 250 यूज होना है। ठीक है, एंड विड्थ ऑफ द बीम इज 250 mm, मतलब ये जो बीच में बीम लगी हुई है जिसपे ये स्लैब सपोर्ट किया है, इनकी जो चौड़ाई है, ये वाली चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई, ये कितनी है, दिस इज योर 250 mm, मतलब 0.2 मीटर का है, वो कन्वर्जन आप कर सकते हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। 250 mm का ये
इसका विड्थ है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, डिजाइन वन ऑफ द इंटरमीडिएट स्लैब। इंटरमीडिएट स्लैब का क्या मतलब होता है, ये जो स्लैब है ना ये एंड का स्लैब है। इंटरमीडिएट होते हैं जो बीच वाले होते हैं, जैसे ये वाला हो गया स्लैब, ये वाला स्लैब हो गया, या इसके बाद वाला हो गया, मतलब जो एंड से हटके हैं, जो बीच में है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में बताया इसने कि आपको इंटरमीडिएट स्लैब डिजाइन करना है। सो आई एम डूइंग, आई एम कंसिडरिंग दिस वन स्लैब। कौन सा, ए जो मैंने जिस पे लिखा ना ये वाला स्लैब, यहाँ से लेके ये वाला पूरा स्लैब मैं डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसने बताया कि डिजाइन करो एक इंटरमीडिएट स्लैब को, तो मैं ये वाला इसको आपको डिजाइन करके दिखा। सो फर्दर बढ़ते हैं आगे, क्या है देखिए अब, हाउ विल यू स्टार्ट दिस प्रोसेस। पहला स्टेप क्या था, आपको लोड निकालना है, ठीक है। और लोड से पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये वन वे स्लैब है कि टू वे स्लैब है। ये भी तो इंपॉर्टेंट है, आप कैसे पता लगाओगे कि ये वन वे स्लैब है कि टू वे स्लैब है, कैसे पता लगाओगे बताइए। क्या क्राइटेरिया था वन वे स्लैब और टू वे स्लैब को चेक करने के लिए? सर लॉन्गर स्पैन, लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन। अगर ग्रेटर देन 2 है तो फिर short, अगर लेस देन है तो फिर लॉन्गर। तो वन वे स्लैब होगा, और अगर स्मॉलर देन होगा तो टू वे स्लैब होगा। बट अभी आपको ये पता ही नहीं है कि टू वे है कि वन वे, राइट। तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप स्पैन देख लीजिए, एल एक्स इज योर शॉर्टर स्पैन। तो ये आ रहा है 3.75। ये 3.75 कैसे आ रहा है, क्योंकि जो बीम्स हैं वो 4 मीटर की दूरी पे हैं और इसकी विड्थ है 250 mm। तो 250 का हाफ यहाँ से हट जाएगा, 250 का हाफ यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि क्लियर स्पैन होता है, ठीक है। तो दिस इज कमिंग 3.75 mm। मतलब बेसिकली आप 4 माइनस 0.25 कर रहे हैं, मतलब 250 mm को आप माइनस कर दे रहे हैं। सिस्टम 4 minus 0.25, so this is you're getting 3.75 clear span जो आ रहा है LX, ठीक है, शॉर्टर स्पैन में इट इज कमिंग 3.75। उसी तरीके से LY इज योर 10 मीटर्स, यहाँ से लेके पूरा का पूरा, क्योंकि इस तरफ हम लोग बीम मान के नहीं चल रहे हैं, बीम हमने बीच में कंसिडर किया, तो ये हम लोग पूरा का पूरा 10 मीटर ले रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज योर 3.75 एंड 10 मीटर्स। अब आप इसको चेक कर लीजिए हेयर। देखिए, इसको चेक करने से पहले एक और चीज है, आपको जो थिकनेस है स्लैब की, ठीक है, वो तो पता ही नहीं, मतलब डेप्थ तो आपको पता ही नहीं है। स्लैब कैसा होगा आपका, अगर आप बेसिकली देखो तो कुछ इस तरीके का स्लैब आपको दिखेगा, ठीक है। और इन दिस केस आपको बेसिकली मैं यही केस में लेके दिखा देता हूँ आपको। इस वाले केस में जो हम स्लैब डिजाइन कर रहे हैं, अगर आप उसका टॉप व्यू देखेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। ये एक स्लैब है, ठीक है, दिस इज योर LX एंड दिस वन इज योर लॉन्गर स्पैन LY, ठीक है। इस तरीके से ये दिख रहा है हम लोगों को टॉप में। इसकी कुछ ना कुछ विड्थ तो होगी, इस तरीके से देख लीजिए, इसकी कुछ विड्थ होगी, कुछ तो चौड़ा होगा। ये वाला पोर्शन दिस इज योर थिकनेस, और डेप्थ भी बोल सकता हूँ, इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए, बट ये इफेक्टिव डेप्थ या फिर डेप्थ हमें नहीं पता अभी, ठीक है, थिकनेस हमें नहीं पता। तो इसको निकालने का क्या तरीका हो सकता है, आपको याद है हमने इससे पहले एक डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया से हम लोग थिकनेस निकालते थे या फिर डेप्थ निकालते थे, इफेक्टिव डेप्थ, याद है। सो इफेक्टिव डेप्थ फॉर अ कंटिन्यूअस बीम क्या था, स्पैन अपॉन 26, ए वैल्यू में लेता था, ए वैल्यू फॉर अ कंटिन्यूअस बीम वाज 26, और स्पैन कितना है, ऑफ कोर्स मैं LX ले रहा हूँ, 3750 अपॉन 26, इट इज कमिंग 144 mm, ठीक है। और ये तो इफेक्टिव डेप्थ हो गया स्मॉल डी, इसमें 25 mm का कवर मैं जोड़ दूं तो 144 प्लस 25 इट इज कमिंग 169, मतलब मैं ले रहा हूँ करीब करीब ओवरऑल डेप्थ एज 170 और इफेक्टिव डेप्थ एज 145 mm। सो दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया जिससे मैंने पता लगाया कि इसकी डेप्थ इतनी हो सकती है, बट आई एम नॉट श्योर अभी कि ये डेप्थ सही होगी कि नहीं होगी, ठीक है। दिस आई विल चेक फर्दर, बट ये एक क्राइटेरिया है कि डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया में पास हो जाए, इसलिए मैंने इसको ये डेप्थ सेट कर ली। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको डेप्थ नहीं दी गई है, थिकनेस नहीं दी गई है स्लैब की, सो यू कैन फाइंड इट यूजिंग दिस डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है। ये कंटिन्यूअस है तो 26 लिया हुआ है यहाँ पे, ए वैल्यू जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सो मूविंग अहेड, अभी आपको डेप्थ पता चल गई है यहाँ पे,
ठीक है, बट ये श्योर नहीं है कि ये डेप्थ सही होगी कि नहीं होगी अभी, ठीक है, वो आगे चल के हम लोग देखेंगे। याद रखना बस हमने जो इफेक्टिव डेप्थ ली है वो 145 ली है प्लस 25 दैट इज 170 इज योर ओवरऑल डेप्थ, या थिकनेस भी बोल सकते हैं इस केस में, स्लैब के केस में थिकनेस भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। नाउ अब आती है बात इफेक्टिव स्पैन की, ठीक है। इफेक्टिव स्पैन जो विड्थ ऑफ द बीम है वो कितना है, 250 mm का गिवन है, ठीक है। हम लोगों का क्राइटेरिया क्या होता था कि कंटिन्यूस बीम में अगर स्पैन अपॉन 12 का जो रेशियो होता है, मतलब स्पैन 3750, ऑफकोर्स मैंने छोटा वाला स्पैन लिया है 3.75 वाला, ठीक है। आप इसको ले लो स्पैन अपॉन 12, आप इसको चेक करो, दिस इज कमिंग 312.5 mm, सो W इज लेस देन स्पैन अपॉन 12। इस कंडीशन में क्या होता था, याद है कल की क्लास में पढ़ा है जस्ट हमने, अगर ये वाला कंडीशन आ जाए कि जो विड्थ है वो स्पैन अपॉन 12 से कम होता है तो हम क्या लेते हैं, इफेक्टिव लेंथ क्या लेते हैं हम लोग, इफेक्टिव स्पैन क्या लेते हैं, एल इफेक्टिव विल बी योर सेम एज दैट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए इफेक्टिव लेंथ क्या होती थी, एल नॉट प्लस डी और एल नॉट प्लस डब्ल्यू विच एवर इज लेस। तो एल नॉट मतलब क्लियर लेंथ कितनी हो गई 3.75, और एल नॉट और डी क्या हो गया हमारा, डेप्थ 145 अभी निकाला था जस्ट, ये देखो ऊपर, सॉरी ये देखिए 145 हमने अभी जस्ट निकाला यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। तो 0.145 हम इसलिए ले रहे हैं बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग इट इन मीटर। तो सिंपल आप देख लीजिए, और उसी तरीके से एल नॉट प्लस डब्ल्यू 3.75 प्लस 0.25 बिकॉज डब्ल्यू इज 250 mm, तो ये आ गया 3.8 और ये आ रहा है 4। आप इन दोनों में से कौन सा लोगे इफेक्टिव लेंथ विल बी द शॉर्टर ऑफ द वन, तो ये वाला आप नहीं लोगे, शॉर्टर वाले को लोगे, तो 3.89 इसकी इफेक्टिव लेंथ हो गई। सो एल एक्स विल बी योर 3.895। उसी तरीके से आप क्या करोगे, एल वाई फाइंड कर लोगे, इफेक्टिव लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी ना आपको, आप बिना इफेक्टिव लेंथ के थोड़ा काम कर सकते हो, इसलिए तो मैंने आपको इफेक्टिव लेंथ पढ़ाया था, ठीक है। अब इफेक्टिव लेंथ वाई में भी आप ऐसे निकाल लो, वाई में क्या हो जाएगा, ये एल वाई वाला डायमेंशन आ जाएगा जो कि 10 था, मैं यहाँ पर आपको इस तरीके से बता ही देता हूँ। सो एल नॉट प्लस डी और एल नॉट प्लस डब्ल्यू के लिए चेक करना होता है, ठीक है। तो एल नॉट इस केस में, वाई वाले केस में क्या हो जाएगा, वाई वॉज 10 प्लस डी इज योर 0.145 एंड दिस इज योर 10 प्लस डब्ल्यू कितना है 0.250 mm था तो 0.25, so this is coming 10.14 something and this is coming 10.25, so which one will you consider, the lesser one, so 10.14 इसका इफेक्टिव लेंथ रहेगी, देखिए 10.145 मीटर इज इफेक्टिव लेंथ, सिंपल। तो आपको अब LX मिल गया, LY मिल गया, अब आपको आपका काम आसान हो गया, अब आप निकाल लो कि ये इफ इट इज अ वन वे स्लैब और अ टू वे स्लैब, कैसे फाइंड आउट करोगे, द लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन का रेशियो देख लो, तो लॉन्गर स्पैन वाज 10.145 एंड शॉर्टर वाज 3.895, so it is coming 2.6 which is more than 2, so it is obviously a one way slab। so यहाँ से आपको पता चल गया कि आपको ये स्लैब एज अ वन वे स्लैब डिजाइन करनी पड़ेगी, ठीक है, इट इज अ वन वे स्लैब। सो सारे के सारे क्राइटेरिया कौन से फिट होंगे, अब वन वे स्लैब के क्राइटेरिया। तो वन वे स्लैब का क्राइटेरिया आपको पता है क्या था, वन वे स्लैब में आपको हमेशा शॉर्टर स्पैन वाले डायरेक्शन में मेन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है, उसके पैरेलल बोल लीजिए या फिर जो फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर बोल लीजिए, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया वन वे स्लैब है। सो लेट अस, एंड इन वन वे स्लैब वन थिंग इज important that we will always consider the shorter span, ठीक है, हमेशा छोटे वाले स्पैन के लिए ही हम लोग कंसिडर करते हैं, बिकॉज बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लॉन्गर वाले स्पैन का बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे या शॉर्टर वाले में निकालेंगे तो शॉर्टर वाले का ज्यादा आएगा, ठीक है। तो आप बेंडिंग मोमेंट से भी चेक करोगे तो मोर बेंडिंग मोमेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। चलिए वो आगे देखते हैं, फिलहाल आप ये ध्यान रखिएगा कि शॉर्टर स्पैन वाला ज्यादा प्रिडोमिनेंट होती है साइड, ठीक है। स्लैब विल बी डिजाइन फॉर दिस शॉर्टर स्पैन। तो शॉर्टर स्पैन कितना था हमारा 3.895, ये देखिए LX के लिए हम लोग अब डिजाइन करेंगे। अब आते हैं पहले स्टेप पे जो हम लोगों का डिजाइन ऑफ द स्लैब। अब हम लोगों को पता चल गया कि वन वे स्लैब, वी हैव टू डिजाइन अ वन वे स्लैब, सो विल गो टू द फर्स्ट स्टेप दैट वाज टू फाइंड द लोड। अब देखिए लोड कैसे फाइंड किया हुआ है, फॉर 1 मीटर विड्थ ऑफ अ स्लैब मैंने बताया 1 मीटर बाय 1 मीटर का हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है, 1 मीटर
विड्थ के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं, 1 मीटर बाय 1 मीटर के लिए करते हैं, ठीक है। तो सेल्फ वेट में क्या आता है, बेसिकली जो उसका लोड आएगा, ठीक है, 0.17। ये क्या चीज था, ये ऑलरेडी आपको गिवन है, ऊपर देखेंगे ऊपर। सॉरी दिस इज योर डेड लोड मतलब कि जो आपका सेल्फ वेट आता है, सेल्फ वेट में आपको कौन सी डायमेंशन लेनी पड़ेगी, दिस योर ओवरऑल डेप्थ, ठीक है, डेप्थ इनटू द विड्थ। तो डेप्थ कितनी है 0.17 और विड्थ कितनी है 1 मीटर, ठीक है। तो 0.17 इंटू 1 लिया होगा, देखना नीचे, ये देखिए 0.17 इंटू 1 और जो 225 है यूनिट वेट ऑफ द कॉन्क्रीट, दिस इज गिविंग अस 4.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यूनिट पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ रहा है, देखिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या ले रहे हैं, 1 मीटर विड्थ ले रहे हैं और हम लोग 1/1 एरिया के लिए बेसिकली डिजाइन कर रहे हैं अभी इसको। तो मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर में लोड हम ले रहे हैं हर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। फ्लोर फिनिश 600 दिया था, ठीक है, आप निकाल लो ऊपर से, अभी मैंने बताया था आपको कि कैसे आप किलो न्यूटन में चेंज कर सकते हो। ये आपका 60 kg गिवन है, तो 60 kg को किलो न्यूटन में करना होगा, तो इंटू 10 कर देंगे, तो इट विल बी इन न्यूटन, तो 600 न्यूटन आ जाएगा। और सिंपल मैं इसको लिख देता हूँ अगर आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, 60 kg को मैं कन्वर्ट करूंगा तो इट विल बी इंटू 10 600 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और उसी तरीके से अगर 600 न्यूटन को किलो न्यूटन में करूँ तो डिवाइडेड बाय 1000 करूंगा, दैट विल बी 0.6 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका फ्लोर फिनिशिंग के लिए। उसी तरीके से 200 kg में है, तो इसको मैं कितना कर दूंगा, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 10, दैट मीन्स दिस विल बी 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये mm नहीं, सॉरी मीटर स्क्वायर में था, सॉरी ये mm मैंने गलती से लिख दिया, दिस इज ए मीटर, ठीक है, इसको कंफ्यूज मत करो, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग 0.6 यूज कर रहे होंगे और 2 किलो न्यूटन यूज कर होंगे लाइव लोड के लिए। देख लेते नीचे आके, ठीक है, ये देखिए फ्लोर फिनिश के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, 0.6, ठीक है, ये आ गया 0.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपको मैंने अभी जस्ट निकाल के दिखाया। तो ये हो गया आपका सेल्फ वेट और फ्लोर फिनिश मिला के आ गया आपका डेड लोड 4.85, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। लाइव लोड गिवन था 200 kg पर मीटर स्क्वायर गिवन था, इसको मैंने किलो न्यूटन में चेंज किया 2 किलो न्यूटन पर मीटर। नाउ ये टोटल लोड कितना आ जाएगा, टोटल लोड विल बी योर दिस डेड लोड प्लस लाइव लोड, तो 4.85 प्लस 2 करके हो जाएगा, ठीक है। बट अभी हम लोगों को डेड लोड और लाइव लोड दोनों की जरूरत है, ठीक है। तो डेड लोड है 4.85, ये ध्यान रखिएगा, डेड लोड 4.85 है और लाइव लोड 2 किलो न्यूटन। अब हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, जस्ट अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, बेंडिंग मूवमेंट कोफिशिएंट एंड शेयर फोर्स कोफिशिएंट, ठीक है, वो याद है आप लोगों को, बेंडिंग मूवमेंट कोफिशिएंट, जिसको मैं के से दिखा रहा था, के इंटू डब्ल्यू एल स्क्वायर, है ना, तो डेड लोड और लाइव लोड के लिए ऐड कर रहा था मैं। उसी तरीके से शेयर फोर्स के लिए भी निकाला था, तो पहले बेंडिंग मूवमेंट के लिए निकाला है इसने। तो पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट कहां पर जनरेट होगा, एट द सेंटर, तो उसकी कोफिशिएंट क्या था 1/16 और 1/12 था, ठीक है, डेड लोड और लाइव लोड के लिए। अगर आप पिछला लेक्चर देखेंगे और या फिर आप आईएस कोड देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कोफिशिएंट। सो दिस वाज 1/16 इंटू डेड लोड इंटू LX स्क्वायर, बिकॉज ये बेंडिंग मूवमेंट है। उसी तरीके से 1/12 वाज फॉर लाइव लोड, तो यहाँ पर WL से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर WD से। सो सिंपल है, WD वाज दिस, LX आपको पता है कितना है, LX क्लब कर दो तो पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट इज कमिंग 7.13 किलो न्यूटन मीटर। उसी तरीके से नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट कहाँ पर आएगा, सपोर्ट्स में, ठीक है, मैंने आपको बताया था इस तरीके का, अगर आपका ये स्लैब है, ये सपोर्टेड है, तो किस तरीके का फॉर्म हो रहा था बेंडिंग मूवमेंट आपका, इट वाज लाइक दिस, ठीक है, कुछ इस तरीके से, मतलब ये पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट्स हो रहे थे कहाँ पे, एट द, दिस वाज योर पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट, और एट द सपोर्ट इट वाज नेगेटिव, ठीक है। तो बेंडिंग मूवमेंट सेंटर पे जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, वो ये आ गया 7.13। नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट कैसे निकालते थे, अगेन डेड लोड के लिए निकालते थे, लाइव लोड के लिए निकालते थे, एट द सपोर्ट, सो इट वाज
-1/10 एंड -1/9। तो आप इसको कैलकुलेट करो। सो दिस इज गिविंग अस WD आपको पता है, WL आपको पता है, सब कुछ सेम है, बस ये चेंज हो गया। सो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इज कमिंग 10.73। तो आप सिंपली एक चीज इसमें ध्यान रखिए कि जो हमारा नेगेटिव मूवमेंट आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, ठीक है, मतलब सपोर्ट पे मूवमेंट ज्यादा आ रहा है और बीच में कम आ रहा है। तो हम लोग बेसिकली जब भी डिजाइन करेंगे तो कौन सा मूवमेंट लेंगे? बहुत ऑब्वियस सी बात है, हम लोग इस मूवमेंट के लिए डिजाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा मूवमेंट है, भले ही ये नेगेटिव मूवमेंट है तो क्या फर्क पड़ता है, बट ये ज्यादा मूवमेंट है ना, ये सपोर्ट पे 10 आ रहा है। अगर 10 के लिए मैं कोई चीज डिजाइन करूंगा तो 7 वाले को तो झेल ही लेगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कोई भी चीज मूवमेंट में 10 मूवमेंट के लिए बना रहा हूँ कि 10 मूवमेंट को झेल ले, तो 7 मूवमेंट को तो झेल ही लेगा ना। तो मैं किसको लूंगा? हमेशा बड़े वाले मूवमेंट को लूंगा। तो आगे डिजाइन करते हैं। नाउ डेप्थ निकाल लेते हैं। मैंने आपको बताया डेप्थ का फॉर्मूला बेंडिंग मोमेंट अपॉन QB। अब मैं देखिए बेंडिंग मोमेंट कौन सा ले रहा हूँ? ज्यादा वाला डेप्थ निकालने के लिए, क्योंकि अगर 10 वाले में पास हो गया तो 7 वाले में तो पास हो ही जाएगा ना। तो 10 ले लिया मैंने इसको, सिंपल 10 इंटू 10⁶ कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है, किलो न्यूटन को न्यूटन MM में कन्वर्ट कर दिया मैंने। और 0.87 इंटू B इज विड्थ इज 1000, 1 मीटर के लिए मैं डिजाइन कर रहा था इसलिए विड्थ इज 1000 ले रहा हूँ। Q कैसे आया 0.87? यहाँ से देख सकते हो आप, इजीली मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। K = MC + T + MC होता है, ये आपका फॉर्मूले से आप ये निकाल लोगे। J = 1/K/3 होता है और Q = ½ CJK होता था, ये आपको अगर ध्यान हो तो इस वजह से मेरा 0.87 आ रहा है, वही मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है। तो यू कैन फाइंड आउट इजीली। तो इसके वजह से मेरी डेप्थ जो आ रही है 111 मीटर आ रही है, 101। और जो मैंने ऊपर निकाली थी इफेक्टिव डेप्थ यूजिंग डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, वो कितनी थी? 145। तो मैं अभी तक का जो डिजाइन कर रहा था 145 mm के हिसाब से कर रहा था, और मेरी अभी डेप्थ आ रही है 111 मीटर। तो मैं डिजाइन 145 से कर रहा हूँ, मेरी जो सेफ है वो 111 है। तो मैं तो ऑलरेडी सेफ हूँ ना, जब मैं 111 में सेफ हूँ और मैं डिजाइन कर रहा हूँ 145 डेप्थ लेके, तो मैं 145 की डेप्थ में तो सेफ हूंगा ही हूंगा। तो मेरा मतलब कंसिडरेशन सही था, मतलब कि मैं 145 लेके चल रहा हूँ तो आई एम सेफ, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले बताया था आपको कि आप लास्ट में आके चेक भी करोगे कि आपने जो डेप्थ ली हो सही है कि नहीं है। सो अब मैं फर्दर जो भी डिजाइन कर रहा हूँ तो मुझे पता चल गया कि जो मैंने डेप्थ ली थी वो मेरी ठीक आ रही है। सो आई एम कंसिडरिंग डेप्थ, जो मेरी ऊपर डेप्थ आई थी 145 इफेक्टिव डेप्थ प्लस 25 ओवरऑल डेप्थ 170। तो मैं अब इस डेप्थ को लेकर डिजाइन करूंगा, ठीक है। यहां से पता चल गया कि माई डिजाइन इज सेफ। क्लियर है? अब सिंपल वही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, एरिया ऑफ स्टील वाला जो मैंने आपको बताया था। एरिया ऑफ स्टील वाला फॉर्मूला जो हम लोग बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं, दैट इज एरिया ऑफ स्टील इक्वल्स टू बेंडिंग मोमेंट ऑफ सिग्मा ST इनटू JD। तो बेंडिंग मोमेंट पहले पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए ले लीजिए, क्योंकि दो बेंडिंग मोमेंट है ना, एक पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव कहाँ आ रहा है? सेंटर पे। नेगेटिव कहाँ आ रहा है? एट द सपोर्ट। तो पॉजिटिव के लिए ले लेते हैं, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होगी AST पॉजिटिव। तो पॉजिटिव 7.13 था, 7.13 इंटू 10⁶। सिग्मा ST फॉर माइल्ड स्टील 250 के लिए हम लोग 140 लेते थे WSM में, ठीक है। JD ऊपर निकाल लिखा है जस्ट अभी, D हमारा 145 है, ये भी पुट कर दिया। सो दिस इज कमिंग 406, 406 mm² इज योर पॉजिटिव एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। पॉजिटिव एरिया ऑफ स्टील मतलब कि जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट की डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। पॉजिटिव कहां पर लग रहा था? मैंने आपको जस्ट अभी बताया, पॉजिटिव आ रहा है आपका सेंटर में, और नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट आपका आ रहा है सपोर्ट्स पे, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये भी जो भी मैं रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करूंगा ये मैं सेंटर में ही प्रोवाइड करूंगा ये वाली, और जो नेगेटिव वाली होगी वो मैं सपोर्ट के ऊपर प्रोवाइड करूंगा, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब मेरे को एरिया पता चल गया, आई एम यूजिंग 10 mm डाया बार्स। मैं क्या कर रहा हूँ? 10 mm डाया की बार यूज कर रहा हूँ। उसकी स्पेसिंग निकाल लो आप लोग। स्पेसिंग कैसे निकालते हैं? स्पेसिंग इज π/4 इंटू D², एरिया अपॉन जो एरिया आपका आया है 406 इंटू द विड्थ इज 1000, मतलब 1 मीटर लिया है 1000। सो इससे आपकी स्पेसिंग आ गई 193। सो आई एम प्रोवाइडिंग 10 mm डाई की रेनफोर्समेंट एट 190 सेंटर टू सेंटर। ये 193 है, मैंने इसको 190 ले लिया, ठीक है। 3 mm से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ज्यादा मत लीजिएगा, कम से थोड़ा बहुत कम ले सकते हैं, क्योंकि अप्रॉक्स लेते हैं ना, 190 लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेट जब आप साइट में इतनी स्पेसिंग रखोगे, इंच टेप से नापोगे, तो आपको 190 निकालना इजी पड़ेगा, 193 mm निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो हम लोग इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, थोड़ा अप्रॉक्स लेके, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो ये हमने निकाल लिया पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट के लिए। उसी तरीके से नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट के लिए निकाल लीजिए। नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट कहाँ पर जनरेट होता है? सपोर्ट में होता है। तो सपोर्ट में मुझे जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो कौन सी होगी? AST नेगेटिव। नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट था 10.3 इंटू 10⁶, ये हो गया सिग्मा ST, J और D,
दिस इज कमिंग 611। अब इसकी भी स्पेसिंग निकाल लो, यहाँ पर भी मैंने 10 mm डाई की बार यूज की है, तो एरिया पाई बाई 4 10 स्क्वायर अपॉन जो एरिया मेरा आया है 611 इनटू द विड्थ इज 1000, सो दिस विल गिव मी 128 mm। तो मैं 128 को ले रहा हूँ 125, ठीक है। सो प्रोवाइड 10 mm एट 125 mm सेंटर टू सेंटर। अब ये दो वैल्यू आप याद रखना, 10 mm एट 190 सेंटर टू सेंटर, ये वाली मैंने कहाँ लगाई है, जहां पर मेरा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, मतलब सेंटर पे लगाऊंगा। और ये वाली रेनफोर्समेंट 10 mm की 125 mm सेंटर टू सेंटर के डिस्टेंस पे कहाँ लगाऊंगा, जहां पर मेरा सपोर्ट आएगा, ठीक है। ये दो वैल्यूज आप याद रखना, अब मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। बट ये हमारा सही है कि नहीं है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट विल चेक फॉर शेयर, क्या हम लोग शेयर में सही है कि गलत है। शेयर में तो नहीं फेल हो रहा, मैंने आपको बताया था आपको तीनों चीज में चेक करना है। फ्लैग शेयर में आपने चेक कर लिया, शेयर में आप चेक करोगे, बॉन्ड में आप चेक करोगे, इन तीन चीजों में आपको चेक करना है। तो फ्लैग शेयर में हम लोगों ने देख लिया, पास हो रहा है। शेयर में चेक कर लीजिए, शेयर फोर्स के लिए हम लोग लेते थे, अगेन ये फॉर्मूला आपको याद होगा, K इंटू डब्ल्यू डेड लोड इंटू एल एक्स। डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर हम लोग बेंडिंग मोमेंट के लिए लेते थे, शेयर फोर्स के लिए लेते था K इंटू डब्ल्यू लाइव लोड इंटू एल एक्स। तो ये आप निकाल लो। सो K कितना होता था, K used to be 0.55 and 0.6 for live load and for dead load। ये आप देख लेना पीछे टेबल में, आपको दिख जाएगा, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, डेड लोड LX, लाइव लोड LX सब सब्स्टिट्यूट कर दो। शेयर फोर्स आ गया आपको 15.06 किलोन्यूटन का शेयर फोर्स आ गया। शेयर फोर्स आ गया तो शेयर स्ट्रेस निकाल लो। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन BD, टाउ इक्वल्स टू V अपॉन BD, जस्ट इससे पहले वाली यूनिट में हमने सॉल्व किया। सो 15 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट किया है। बी इज 1000, देखिए बी हर जगह पे मैं 1000 ही ले रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं 1 मीटर सेक्शन के लिए ही डिजाइन कर रहा हूँ, और डेप्थ 145। सो टाउ मेरा आ गया 0.104 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। और टाउ सी कितना होता है, टाउ सी मिनिमम जो होता है वो होता है 0.18। ये मैंने कहाँ से निकाला, ये वो टेबल है जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, टाउ सी मिनिमम जहां से आप निकाल सकते हो, ठीक है। टाउ सी मिनिमम की वैल्यू किस पे डिपेंड करती थी, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मिक्स कौन सा है, उस पर वैल्यू आपको मिलती थी, M15 M20, उसके हिसाब से टेबल से आप देख सकते हो। सो टाउ वी जो मेरा शेयर स्ट्रेस आ रहा है वो 0.1 है, 0.10 है, और जो टाउ सी है जो मेरा कंक्रीट झेल सकता है वो 0.8 है। तो मेरा कंक्रीट जो झेल सकता है वो 1.8 है, जो मेरे को झेलना है वो 1.0 है, 0.10 है। तो मैं तो सेफ, आई एम सेफ, बिकॉज मेरे को कोई शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। बट पहले भी मैंने बताया, अगर आपको शेयर कहीं पर शेयर नहीं भी डेवलप हो रहा होगा तो भी आपको शेयर इन्फोर्समेंट मिनिमम प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हम नीचे निकाल के देखेंगे कि मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ऑल्दो मेरे को पता है कि नो शेयर, मतलब इतना ज्यादा शेयर नहीं हो रहा है कि मेरे को शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़े, नो शेयर इन्फोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, बट इवन देन आई विल हैव टू प्रोवाइड द मिनिमम रेनफोर्समेंट, मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट मुझे प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कोड बोलता है ये चीज। आगे बढ़ते हैं, शेयर के लिए आपने चेक कर लिया। नेक्स्ट आप चेक कीजिए, चेक फॉर बॉन्ड। बॉन्ड का क्या फॉर्मूला होता था, टाउ BD, सिंपल है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के लिए देख लीजिए 10 mm एट 190 mm सेंटर टू सेंटर, ये आया था हमारा पॉजिटिव। शेयर फोर्स था 15.06, निकाल लो क्या टाउ BD का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन सिग्मा O JD, ये पैरामीटर वो होता था उसका ना, रेनफोर्समेंट का पैरामीटर लेते थे हम सारे के सारे उसका। तो V आपको पता है, शेयर फोर्स गिवन है, J और D आपको पता है, जो आपको नहीं पता है वो सिग्मा O है, ठीक है। तो पैरामीटर क्या होता है, देखिए 10 mm डाया क्या था, तो पाई D तो इसका पैरामीटर हो गया, इनटू नंबर ऑफ बार्स, कितने बार होंगे। तो हम 1 मीटर स्पैन के लिए देख रहे थे, ठीक है, 1 मीटर स्पैन मतलब 1000 mm के लिए हम देख रहे थे। 1000 में अगर मैं, ये 1000 है, 1000 में अगर मैं स्पेसिंग को डिवाइड कर दूं 190, मतलब हर एक बार जो मेरी है वो 190 की डिस्टेंस पे है, 190 mm, ठीक है, इतनी डिस्टेंस पे है। तो मुझे निकालना है कि कितने नंबर ऑफ बार्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, 1 मीटर में मेरी कितने, दिस डिवाइडेड बाई 190 करूंगा तो मेरी नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगी, नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट, तो मेरी नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर वही कर रहा हूँ, 1 मीटर में इतनी स्पेसिंग में कितनी बार आ जाएंगी, ठीक है। सो उसका पैरामीटर निकाल लिया, तो दिस विल गिव मी टाउ BD ऑफ 0.726 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
और जो टाउ बीटी परमिसिबल होता है, परमिसिबल वैल्यू का टेबल गिवन था, ठीक है, वो कितना है 0.6 और ये आ गया 0.7, तो ये तो बॉन्ड में फेल हो गया भाई। 0.6 झेल सकता है परमिसिबल M15 के लिए, कितना था टाउ बीटी 0.6 था, यहाँ आ गया 0.7, तो ये क्या हो गया, बॉन्ड में फेल हो गया। और मैंने बताया आपको जब ये फेल होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली कम चाहिए ना, यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेस कम चाहिए, तो आप क्या करो, इसका डायमेंशन कम कर दो। तो 10 mm की सरिया यूज कर रहे थे, इसकी जगह पे अब आप 8 mm की सरिया यूज कर लो। अब आपका ये फेल हो गया डिजाइन बॉन्ड में, ठीक है, आप इसको लेके कैरी नहीं कर सकते हो। चलो मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 8 mm डाया का इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर, बहुत सिंपल है। 8 mm का मैंने इसकी जगह पे यूज कर दिया, तो स्पेसिंग मेरी 190 थी जब मेरा 10 था, तो 8 होगा तो कितना हो जाएगा 121 mm, ठीक है। ऑफकोर्स कम हो जाएगी, ये आप निकाल सकते हो इजीली, स्पेसिंग वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हो। जब सिंपल तो है यार, 10 mm का था तो 190 स्पेसिंग थी, तो 8 mm का होगा तो कितनी होगी, तो इस क्रॉस करके भी आप निकाल सकते हो, तो 121 आ रहा है, ठीक है। तो प्रोवाइड 8 mm एट 120 सेंटर टू सेंटर, ये मेरा नया डायमेंशन हो गया फॉर पॉजिटिव रेनफॉल। इसके लिए AST पॉजिटिव मेरा कितना हो गया, ये हो गया। पहले ये कितना था 10 mm एट 190 mm, ये हुआ करता था, बट इट फेल्ड इन बॉन्ड, so I have revised my section to this one, 8 mm at 120 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ठीक है। तो मैं इसको, ये मेरा फेल हो गया तो मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया, मैं इसको एक्सेप्ट करके देख रहा हूँ। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये मेरा बॉन्ड में पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फिर से फॉर्मूले में रख दीजिए, टाउ बीडी के फॉर्मूले में V अपॉन 1000/120, क्योंकि वो स्पेसिंग 120 हो गई है, इंटू पाई इंटू 8 ही इसलिए ले, क्योंकि अब डायमीटर 8 हो गया है, बाकी चीजें सेम रहेंगी, 0.185 इंटू 145 JT सेम रहेगा। सो दिस इज कमिंग 0.57, और मेरा परमिसिबल कितना है 0.6, तो मैं 0.6 से कम में आ गया हूँ। सो नाउ माई बॉन्ड स्ट्रेस इज परमिसिबल एंड आई एम सेफ इन बॉन्ड, तो मेरा ये वाला बॉन्ड में भी सेफ हो गया, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि AST नेगेटिव कौन सा था, ऊपर वाला था, AST नेगेटिव वैल्यू चेंज होकर 8 mm का हो गया, और AST पॉजिटिव 10 mm का है, ये ध्यान रखिएगा। अभी डायग्राम में दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार मतलब क्या होता है, जो आपको मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी, तो ये मैंने आपको उसमें दिखाया था लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मिनिमम रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करनी पड़ती है वो कितना होता है 0.15% ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब B इंटू D का आपको निकालना पड़ता है। तो 0.15% मतलब 0.15 अपॉन 100 इंटू 1000 इंटू 1, दिस इज कमिंग 255 mm स्क्वायर, मतलब इतना मिनिमम रेनफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन में, 255 mm स्क्वायर का आपको डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। दिख रहा है ना, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हुआ स्क्रीन में? नो सर। नो सर। ठीक है, तो मिनिमम रेनफोर्समेंट जो आपको प्रोवाइड करनी है वो है 255 mm स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी स्पेसिंग निकालो, स्पेसिंग निकालना वो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, स्पेसिंग कैसे निकालते हैं। क्या होता है स्पेसिंग, सिंपल कुछ मत करना, π/4d स्क्वायर, π/4 जो भी आपका डायमीटर d स्क्वायर अपॉन जो एरिया आ रहा है 255 इंटू द विड्थ हमने यहाँ पर लिया है 1000 mm, ठीक है। तो आप इससे स्पेसिंग निकाल सकते हो, तो स्पेसिंग आ गया 1000/255 इंटू दिस 197 mm। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ प्रोवाइड 8 mm डाया एट 197 को मैंने ले लिया 190 mm सेंटर टू सेंटर, खत्म, ठीक है। तो ये मेरा मिनिमम रेनफोर्समेंट होगा जो कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोवाइड करूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ प्रोवाइड करना था याद है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ प्रोवाइड करना था, ये आपका शॉर्टर स्पैन है, दिस वन इज योर LX शॉर्टर स्पैन एंड दिस वन इज योर LY लॉन्गर स्पैन। तो शॉर्टर स्पैन में तो अब आप क्या करोगे, मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे, ठीक है, इस तरीके से क्रैंक्ड बार्स की तरह, और जो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट होगी वो कहाँ होगी, इस तरीके से प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो ये वाली रेनफोर्समेंट हमने निकाली है, ये वाली जो दिख रही है आपको, ये आ रही है 8 mm एट 190 सेंटर टू सेंटर, मतलब ये डिस्टेंस जो है 190 है इन दोनों के बीच की स्पेस, और ये सरिया का साइज कितना है 8 mm का।
उसी तरीके से ये जो मेन रेनफोर्समेंट थी ये हमने ऊपर निकाली थी, ठीक है। तो अब आप इसकी एक बार डिटेलिंग देख लो, अगर ये जब डायग्राम बन के आएगा डिजाइन तो ये कैसा दिखेगा। सी है, ये देखिए, अब ध्यान से देखिएगा आप लोग एक चीज, ये आपका कंटिन्यूस स्लैब था, ये कंटिन्यू हो रहा है स्लैब, ये आपका टी बीम है, नीचे से टी शेप की लगी हुई है बीम, ठीक है। ये देखिए बीम लगी हुई है बीच में, हमने ये वाला स्लैब डिजाइन किया था, राइट। इसमें हम लोगों का जो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट आ रहा है, जो अभी अभी हमने निकाला है डिस्ट्रीब्यूशन, वो कितना आ रहा है 8 mm एट 190 mm सेंटर टू सेंटर। वो कैसा दिखेगा हमें, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूं सेक्शन को, देखिए अगर मैं इस सेक्शन को यहाँ से कट कर दूं एक्स एक्स, यहाँ से अगर मैं इस सेक्शन को कट कर दूं तो मुझे आपको आपको कैसा दिखेगा बताइए। अगर मैं इस सेक्शन को यहाँ से कट करूंगा तो ये वाली जो बार्स हैं वो आगे से कैसे दिखेंगी आपको, डॉटेड दिखेंगी, दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी, ये वाली ये डॉटेड दिखेंगी। और जो ये वाली बार्स हैं जो मेन रेनफोर्समेंट है वो कैसी दिखेगी, वो लंबी दिखेगी आपको। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपको लंबी दिख रही है, ये मेन रेनफोर्समेंट है, और जो आपको डॉट्स की तरह दिख रही हैं उसके ऊपर रखी हुई है ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट है। तो जो डॉट्स हैं 1 2 3 4 इतनी सारी जो भी लगी हुई हैं, ये आपके क्या है 8 mm एट 190 mm सेंटर टू सेंटर, ये जो हमने निकाला 8 mm एट 190 सेंटर टू सेंटर, ये हो गई आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार। और मेन बार आपकी कौन सी होंगी, ये वाली। अब बताइए आप मुझे, जो बीच का सेक्शन था वहां पर कौन सी बार लगानी थी हमें, एएसटी पॉजिटिव, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट वाली एएसटी पॉजिटिव। और जो ये वाला पार्ट था सपोर्ट वाला, सपोर्ट वाले पे रेनफोर्समेंट क्या लगेगी, एएसटी नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो रहा है। तो नेगेटिव वाली कहाँ लगेंगी, ऊपर लगेंगी, और पॉजिटिव वाली नीचे लगेंगी। क्योंकि आपको पता है बेंडिंग मोमेंट कैसे होता है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे होता है और यहाँ पर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है। तो एएसटी पॉजिटिव आप नीचे लगा दो, ये कितना था 8 mm एट 120 mm सेंटर टू सेंटर, ये रिवाइज हुआ था हमारे, याद है, ये 10 था, ये बॉन्ड में फेल हो गया था तो मैंने 8 mm लिया था। अब ये वाली जो सरियां हैं ये वाली है, ये वाली, ठीक है 8 mm, और इन दोनों की डिस्टेंस है आपस में बीच में 120 mm सेंटर टू सेंटर। उसी तरीके से जो नेगेटिव एएसटी था, एएसटी नेगेटिव जो आ रहा था नेगेटिव, वो आएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, ये बार्स लगती हैं ऊपर की तरफ। तो ये था हमारा 10 mm एट 125 mm सेंटर टू सेंटर एएसटी नेगेटिव। अगर आप चेक करना चाहें तो वीडियो को पीछे करके आप देख लेना, एएसटी नेगेटिव जो था वो ये प्रोवाइड कर लिया था हमने। तो ऊपर वाली जो रेनफोर्समेंट आ रही है मेन रेनफोर्समेंट वो ये है 10 mm, नीचे जो आ रही है वो 8 mm की है। इनको जो टाई करके रख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार, बेसिकली ये वाला जिससे ये बधी हुई है, ये लंबी वाली बार जो है वो आ रही है 8 mm एट 190 सेंटर टू सेंटर। सो दिस इज योर स्लैब का एक इंटरमीडिएट स्लैब हमने डिजाइन करके बताई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा चेक करोगे, पहले आपने फ्लेक्चर में चेक किया फेल हो रहा है कि नहीं, फिर आपने शेयर में चेक किया, फिर आपने बॉन्ड में चेक किया, ठीक है। आप चाहो तो फिर आगे डेवलपमेंट लेंथ वगैरह भी चेक कर सकते हो किसी भी पार्ट पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्लैब को डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि इस वाले क्वेश्चन में काफी कुछ आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और एक और चीज है, एक बार में बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 100% समझ में आ जाएगा, एक बार में थोड़ा सा इसको रिव्यू कीजिएगा दोबारा से, ठीक है। इस पे बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल और करेंगे हम लोग। पहले मैं नेक्स्ट क्लास में आपको 2 वे स्लैब बताऊंगा, उसके बाद हम लोग और स्लैब्स डिजाइन करके देखेंगे। बट ये एक अल्टीमेट एग्जाम्पल था जिसमें मैंने आपको पूरा का पूरा स्लैब का डिजाइन दिया है, ठीक है। ये एग्जाम में ऐसा मत समझिएगा कि पूरा का पूरा आपका आएगा, ठीक है। ये आएगा तो फिर सीधे 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि ये 4 या 5 पेज की डिजाइन है पूरी, ठीक है। तो आप ये वाले को जरूर रिव्यू कीजिएगा, इसको पूरा का पूरा, आपको इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। तो आई जस्ट कम बैक टू दिस। ठीक है, तो आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया दैट इज योर स्लैब, 1 वे स्लैब आज हम लोगों ने एक डिजाइन करके देखा। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल हाउ टू डिजाइन अ 2 वे स्लैब, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप जरूर रिव्यू कीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। पूरा का पूरा एक बार आप इसको क्वेश्चन को दोबारा से एक बार देखिएगा, ठीक है। मैं वीडियो आपको आज ही सेंड कर दूंगा इसमें। नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट क्लास मे बी टुमारो आई विल डिजाइन अ 2 वे स्लैब, ठीक है। अटेंडेंस में मार्क कर लेता हूँ आप लोगों की।
जस्ट अ मिनट। ठीक है, अटेंडेंस आप लोगों की मार्क हो गई है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास देन। थैंक यू।